Okay, sir. नेक्स्ट इज हमने पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कर लिया था ड्राइव या नहीं किया था? No, sir. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल लिखो फिर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, A part is on the axial line. Electric potential due to dipole, A part is on the axial line. क्योंकि मेरे पास दो चार्जेस हैं, से प्लस क्यू, आपको यहाँ पोटेंशियल निकालनी है at a distance r from the center. So negative charge से distance r minus a, positive charge से r plus a. Center से distance r. डायग्राम बना लो फिर. Second rate. कैसे करेंगे? अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल पूछूं पी पॉइंट पे, तो KQ by KQ upon R plus A, और नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल KQ upon R minus A. पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली दोनों पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट दी टोटल पोटेंशियल की. पॉजिटिव की KQ upon R plus A, नेगेटिव की माइनस KQ upon R minus A. तो सिंपली एडिशन करनी है आपने. और एक्सियल लाइन आपको पहले से पता है वो डेफिनेशन, से उसको नहीं लिखेंगे हम. Second, it consider an electric dipole. Consider an electric dipole. Consider an electric dipole having charge plus minus q in length 2a. In length 2a. Electric potential is to be determined. Electric potential is to be determined at a point P on the axial line. At a point P on the axial line. Electric potential is to be determined at a point P on the axial line such that the distance of point P from the center is r. Distance of point P from the center is r. The distance of positive charge, distance of positive charge from point P is r plus a, and distance of negative charge from point P is r minus a. Therefore,
Total potential is V positive plus V negative. अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो यू विल गेट Q को भी कॉमन ले सकते हो, R minus A minus R minus A upon R square minus A square. न्यूमरेटर में क्या बचा? न्यूमरेटर minus 2 minus 2a and minus 2AQ is p P. p So 1 by 4 pi epsilon naught minus P upon R square minus A square. And negative sign क्या signify कर रहा है? Negative sign signifies that potential negative कब होती है? Gravitation में negative आई थी. attractive कि अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूंगा इट विल बी अट्रैक्टेड. मैथमेटिकली क्लियर है बिकॉज नेगेटिव चार्ज पॉइंट पी के पास है, तो नेगेटिव चार्ज अगर पास होगा तो नेगेटिव की पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, पॉजिटिव की पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कम होगा. बट इन जनरल अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ, मान लो मैंने इधर टेस्ट चार्ज रख दिया, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी? एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक Same फील्ड की as डायरेक्शन same as Same as डाइपोल dipole. मोमेंट. dipole डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव से पॉजिटिव. मतलब मैं अगर इधर टेस्ट चार्ज रखता तो इस पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स भी इधर ही लगती, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स. वेरेज अगर मैं इधर निकालता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, टेस्ट चार्ज विल repulsive force मूव अवे. तो यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव आती. नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव आ रही है बिकॉज वहां पे नेट फोर्स टेस्ट चार्ज पे अट्रैक्टिव होगी, यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो रिपल्सिव होगी. So negative does not signify anything about the direction because potential being a scalar quantity. Negative sign only signifies that at point P, if a positive test charge is placed, it experiences an attractive force. So you can write. यहाँ तक लिख लिया तो negative potential signifies that. Negative potential signifies that if a positive test charge negative potential signifies that if a positive test charge is placed, if positive test charge is placed at point P, it experiences an attractive force. It experiences an attractive force. Note में लिख लो. If potential is calculated on the axial line, if potential is calculated on the axial line near the positive charge, if potential is calculated on the axial line near the positive charge, potential will come out to be positive. Potential will come out to be positive. It signifies that potential will come out to be positive. It signifies that. A repulsive force acts on a positive test charge at that point. Repulsive force acts on a positive test charge at that point. Next is
Electric potential on the equatorial line of dipole. Electric potential on the equatorial line. This will be easy. Because equatorial line पे positive and negative charge will be equidistant. क्योंकि मैंने यहाँ रखा से प्लस क्यू. So positive charge का distance भी r square plus a square and potential is kq square upon r square plus a square. Negative की भी same potential magnitude but negative. Net potential will be 0. And zero potential on equatorial line signifies no work is done in moving a charged particle along the equatorial line of dipole. So you can draw this diagram, then we will write. Consider a dipole having, consider a dipole having charge plus q and minus q. Consider a dipole having charge plus q and minus q. And length 2a. Electric potential is to be calculated on equatorial line at a distance r from the center of dipole. At a distance r from the center of dipole. Thus both positive and negative charge are equidistant. Thus both positive and negative charge are equidistant. From the point charge, both positive and negative charge are equidistant from the point charge. The potential due to positive charge at point P is potential due to positive charge at point P is
जीरो पोटेंशियल और क्या सिग्निफाई करती है? कैन वी से, जैसे हमने कहा कि पॉजिटिव पोटेंशियल है तो रिपल्सिव फोर्स है, नेगेटिव पोटेंशियल है तो अट्रैक्टिव फोर्स है। जीरो पोटेंशियल ऐसे क्या सिग्निफाई करेगी इस केस में? Nothing. हम कह सकते हैं जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल है तो हमने कहा रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव, जीरो पोटेंशियल है तो जीरो फोर्स। No, क्या sir. नहीं? Equatorial No, line sir. is a force because of field. Because field is perpendicular. Potential zero इसलिए आ रही है because field perpendicular act कर रहा है. Field is acting perpendicular to the displacement. कि अगर आप डायग्राम देखोगे तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? Opposite to ऑपोजिट टू dipole. डाइपोल मूवमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हम इक्वेटोरियल लाइन के लॉन्ग मूव करेंगे तो वर्क डन जीरो आ रहा है. So you can write zero potential signifies that. Zero potential signifies that no work is done. Zero potential signifies that no work is done in moving a charged particle. No work is done in moving a charged particle along equatorial line. Along equatorial line of the dipole. Along equatorial line of the dipole. Along equatorial line of the dipole. Next. न्यूमेरिकल लिखो एक पहले, फिर आगे थ्योरी करते हैं. इजी है, गलत मत करना. Two concentric spheres. Two concentric spheres of radius r and 2r. Two concentric spheres of radius r and 2r have charges q and minus 2q respectively on their surfaces. तो अगेन सरफेस मतलब एक ही लेना है, इनर आउटर ऐसे नहीं करना. The potential difference between the two surfaces is 6 volt. The potential difference between the two surfaces is 6 volt. If charge plus 3q is given to the outer sphere, if charge plus 3q is given to the outer sphere of radius 2r, find the new potential difference between the surfaces. Find the new potential difference between the surfaces. क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें दिया है दो सरफेस हैं, एक का रेडियस r, एक का 2r. पहले चार्ज दिया है q और माइनस 2q, फिर और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 6 वोल्ट. इसका रेडियस r, इसको चार्ज दिया q, इसको माइनस 2q, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है. फिर आउटर को चार्ज दिया 3q, तो आउटर पे चार्ज कितना हो जाएगा? 2q. q, बिकॉज पहले माइनस 2q था, हमने प्लस 3q दे दिया,
तो आउटर पे चार्ज हो गया Q, तो हमने बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना होगा। अगर पहले 6 है तो बाद में कितना होगा, और बिल्कुल आराम से करना, मेरे को इसका आंसर गलत नहीं चाहिए किसी का भी। अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि इन concentric spheres potential difference between the spheres is independent of charge on the outer sphere, ऐसा क्यों? इसका लॉजिक क्या है? I am saying potential difference between the two concentric spheres is independent of charge on the outer sphere. अगर मैं बोलूं आउटर स्फीयर की पोटेंशियल अपने चार्ज के कारण कुछ भी है, लेट इट बी x, आउटर के सरफेस पे पोटेंशियल उसके अपने चार्ज के कारण x, तो इनर के सरफेस पे पोटेंशियल आउटर चार्ज के कारण x होगी या डिफरेंट होगी? X same. पोटेंशियल डिफरेंस तो डिपेंड ही नहीं करेगा ना जब डिफरेंस लोगे। आप लॉजिकली देखो, अगर मैं अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो मैं इनर की पोटेंशियल लिखता हूं अपने चार्ज के कारण Q/R, और आउटर के चार्ज के कारण यही फॉर्मूला बनेगा। Yes, sir. 0 आउटर के सरफेस पे पोटेंशियल इनर पे चार्ज के कारण और उसके अपने चार्ज के कारण, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं आउटर पे चार्ज कुछ भी कर दूं, बेसिकली आप इसको देखो, जब आप डिफरेंस लोगे इन दोनों का V1 माइनस V2, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल ही हो जानी है। Yes. सेकंड टर्म Yes, sir. मैं अगर इसको 0 नहीं भी लिखता, आप ऐसे कर लो, मैं इसको 0 नहीं लिखता, मैं जब V1 माइनस V2 करूंगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। मतलब आउटर सरफेस पे -2Q हो, 5Q हो, 10Q हो, क्या फर्क पड़ना है, वो टर्म तो कैंसिल ही हो जानी है। तो ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन को बहुत बार ही पूछते हैं कि आउटर पे चार्ज को बदलते हैं, आउटर पे चार्ज को बदलेंगे तो इट विल नॉट अफेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो एक जनरल लॉ है या स्टेटमेंट है कि whenever you have two concentric spheres, potential difference between the spheres is independent of charge on the outer sphere. समझ में आया कैसे किया मैंने? बिकॉज अगर मैं बाद में भी लिखता कि जब मैंने चार्ज दे दिया 3Q तो आउटर पे चार्ज हो गया Q, तो अब V1 कितना? V1 इज 3/2 KQ/R. नहीं, मैं ऐड करूंगा ही नहीं, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा ना। V2 इज तो जब डिफरेंस लेंगे अगेन ये टर्म कैंसिल, Yes, तो sir. पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है। इनर पे चार्ज बदलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगी, और अगर इनर पे चार्ज सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। Yes, sir. अब ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? यस सर तो कर दिया। इनर पे चार्ज बदलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा। देखो इसको ध्यान से, हाँ, इनर बदलेगा. पे चार्ज ये Q1 यहाँ पे Q2 यहाँ पे Q2, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया ना, यहाँ पे Q1/R माइनस Q2/R, इधर Q2/R माइनस Q2/2R। तो अगर इनर सरफेस पे चार्ज बदलता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलता है, आउटर पे बदलता है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलता। सो यू कैन राइट एज, हमें यहाँ पे दिया था V1 माइनस V2 इज 6, तो यहाँ पे भी वही आएगा, V1 माइनस V2 डैश विल आल्सो बी 6। So you can write it as a statement. This implies that if change in charge
This implies that if change in charge takes place on the outer surface, the potential difference between the two surfaces will not change. The potential difference between the two surfaces will not change. But if charge on the inner sphere changes, potential difference between concentric spheres will change. Potential difference between concentric spheres will change. Next to write relation between electric field intensity and potential difference. You can write पहले definition लिख लो potential difference की फिर करते हैं. Potential difference is defined as work done to move. Potential difference is defined as work done to move unit positive charge. Work done to move unit positive charge from one point to another. Excuse me, sir. सर इसमें भी एक्सटर्नल वाला है. अभी कराने लगा हूँ. इसमें ठीक से करेंगे, चिंता ना कर. इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे. So you can write work done to move unit positive charge from one point to another. Consider a point charge Q. Consider a point charge Q placed at any point in space. The 2 points P and Q as shown in the figure. The 2 points P and Q as shown in the figure. 2 points P and Q as shown in the figure have potential V and V plus dV. The distance from सर point है charge potential क्या बोला था? V has potential V and V plus dV with distance R and R minus dr from the point charge. With distance R and R minus dr from the point charge. हम ऐसे ले रहे हैं. हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यूब 2 पॉइंट्स लिए,
मतलब मैं थोड़ा डायग्राम में ज्यादा डिस्टेंस बना रहा हूँ शो करने के लिए, अदरवाइज पी एंड क्यू आर क्लोज। क्यू का डिस्टेंस है r माइनस डी आर, और पी का डिस्टेंस है r। यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज को मूव करना है क्यू नॉट को, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगी, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, इस क्यू के कारण repulsive, Repulsive. Right. इस डायरेक्शन में। तो एक्सटर्नल फोर्स मेरे को जो लगानी पड़ेगी टू मूव इट विद जीरो एक्सेलरेशन, वो होगी माइनस क्यू नॉट ई। सर दिख नहीं रहा, ब्लर हो गया। ब्लर हो गया। Sir, blur हो गया। ब्लर हो रखा है। अब क्या करूं मैं, फिर वेट करनी पड़ेगी, इंटरनेट अगर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है तो। सर आप अपना एक बार कैमरा ऑफ और ऑन करके देख लो। कैमरा नहीं, नेट बंद करना पड़ेगा, क्लास बंद हो जाएगी ना। कनेक्टिविटी सही लग रही है, एकदम से आउट ऑफ फोकस सा हो गया। तो मेरे एंड पे तो कैमरा सही नजर आ रहा है बिल्कुल। अगर कनेक्टिविटी सही है तो बड़ा करके दिखाऊं अगर दिखता है तो। सर अब थोड़ा बेटर दिख रहा है। मैं और बड़ा कर देता हूँ, ये ले, ठीक है। यस सर। हम ले रहे हैं P से Q तक, हम चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, बिकॉज वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऑन द एक्सटर्नल फोर्स इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका वर्क डन कितना होगा, माइनस क्यू नॉट ई का। You can say work done for small displacement will be माइनस क्यू नॉट ई इंटू माइनस डी आर। into small distance dr, यही आएगा। अच्छा, माइनस क्यू नॉट ई और डी आर में एंगल कितना है, अगर मैं P से Q आ रहा हूं तो यू कैन राइट दिस एज माइनस क्यू नॉट ई डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, मैंने कहा इसकी पोटेंशियल V, इसकी V प्लस dV, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज dV। Potential difference is work done per unit test charge, मतलब dW by Q naught. So this will be minus EDR, or you can say E is equals to क्या इम्प्लाई कर रहा है, E is equal to minus dV by dr, मतलब अगर V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो। तो मतलब अगर किसी रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। पहले इसको हमने दूसरे वे में किया था, हमने कहा था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब सारी जगह पे पोटेंशियल सेम है। ये रिलेशन भी वही बेसिकली सिग्निफाई कर रहा है कि अगर V किसी रीजन में कांस्टेंट होगा तो E जीरो होगा। ये इंप्लाई नहीं कर रहा V जीरो होगा तो E जीरो होगा, ये इंप्लाई कर रहा है अगर dV जीरो होगा तो E जीरो होगा। dV जीरो मतलब dV क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन पोटेंशियल, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल। तो V जीरो डजंट इंप्लाई E जीरो, बिकॉज इक्वेटोरियल लाइन पे आपने कर लिया, इक्वेटोरियल लाइन पे V जीरो था पर E जीरो नहीं था। सो ये रिलेशन इंप्लाई कर रहा है कि अगर V कांस्टेंट है किसी रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब कभी इसको छोटा डायग्राम बनाना है तो बना लो, फिर थोड़ा छोटा कर दे तो समझ में आ रहा है क्या किया। यस सर। राइट, to move the charge particle from P to Q, to move the charge particle from P to Q with zero acceleration, to move the charge particle from P to Q with zero acceleration, an external force minus Q naught E, an external force दोबारा बोल move दो। the charge particle from P to Q आपने with जब dv zero acceleration. सर आपने जब v इज इक्वल टू जीरो आपने e के बारे में बता रहे थे, जब e
जीरो नहीं होगा, अगर v जीरो है तो उसके बाद में सुन ही नहीं पाते, वो रिपीट कर दो वहां वो से। बाद में लिखाता हूँ यार, ये तो लिख ले जो मैं डेरिवेशन लिखा रहा हूँ, वो तो इम्प्लीकेशन बताई थी। सो यू कैन राइट, लिंक टूट गया, फिर क्या लिखाया था मैंने, आपको बताना क्या सेंटेंस लिखाया था। Sir, with zero acceleration. With zero acceleration, an external force minus q naught e, an external force minus q naught e must be applied on the test charge work done for small displacement, work done for small displacement, work done for small displacement is thus given by, work done for small displacement is given by dw is equal to minus q naught e dot dr, और इसके साथ आप ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल। Work done per unit test charge is potential difference और इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं तो देन वी विल यूज पार्शियल डेरिवेटिव्स। दिस इज फॉर जेई एडवांस ओनली, और कहीं नहीं आएगा ये। पार्शियल डिफरेंशिएशन याद है ना, क्या बताया था 11th में, कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो y और z कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x और z कांस्टेंट, और विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो x और y कांस्टेंट। बट अभी इसी पे फोकस कर लो अदर देन इस पे, ये बहुत रेयर यूज होने वाला फॉर्मूला है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर यहाँ पे भी तो जैसे हमने r माइनस टी लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या जैसे r प्लस टी की जगह r हमने माइनस। उसको ऐसे यूज नहीं किया ना, हमने dr डिस्प्लेसमेंट ली है और वो फोर्स की डायरेक्शन में है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब माइनस क्यू नॉट ई का वर्क पॉजिटिव आएगा। वो तो माइनस आ रहा है बिकॉज माइनस क्यू नॉट ई हमने लिया, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है ओके क्यू सर। नॉट ई से। यहां तक लिख लो, फिर दिखाता हूँ इम्प्लीकेशन। Right, this implies that if v is constant in a given region, this implies that if v is constant in a given region, potential differences, sorry, v is constant in a given region, electric field intensity in that region is, electric field intensity in that region is zero. Electric field intensity in that region is zero. Next note में लिख लो इसके नीचे, this relation does not imply that, this relation does not imply that
If V is equal to 0, then E is equal to 0. If V is equal to 0, then E is equal to 0. If V is equal to 0, then E is equal to 0. So